Good evening, children. This is Shikha Sharma, your social science mentor, and now we are going to discuss about the contribution of philosophers in the outbreak of the French Revolution, that is 1789. Now, who are the philosophers? Philosophers are the people who propose some sort of idea, on which you can think very deeply. एक फिलॉसफी देते हैं वो. कई बार आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल देते हो, प्लीज आई डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी, आई एम नॉट इन दैट मूड. एक सोच जिसपे आपको सोचना पड़े, यू आर फोर्स्ड टू थिंक अपॉन दैट बिकॉज दे हैव अ लॉजिक, दैट इज फिलॉसफी. ओके, सो नाउ इन फिलोसोफर्स का बेटा ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्यों? क्योंकि यही वो लोग थे, यही वो थॉट्स थे जिन्होंने पीपल एंड गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया. पीपल में लोगों को दे आर गोइंग टू इंस्पायर. कैसे इंस्पायर करेंगे? विद देयर आइडियाज. इंस्पायर विथ आइडियाज. पीपल इंस्पायर होंगे एंड गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू फॉलो दीज थिंग्स, क्योंकि पीपल इंस्पायर हो चुके हैं, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं. They are not happy with the government. Why? Because few people have come and told them that whatever is being practiced in the system is not acceptable. क्या हो सकता है? What are the alternatives present in front of us? तो अब ये philosophers, अब आप बेटा अगर if this comes as a question, so आपका आंसर कैसे आना चाहिए? You should always give an introduction. Introduction should be there in your answer. Always remember this. हम खुद को introduce करते हैं कुछ भी कहने के पहले. So आपका एक basic introduction आएगा. French Revolution and philosophers में आप कहेंगे like these philosophers, the ideas which were proposed by these philosophers became the basis of the thinking of the people, which were discussed extensively in the public places like salons, coffee houses, and even they were read through the books and papers. Those who were not able to in fact read and write, they were also explained these things through the group discussions. जैसे होता है ना कि पहले विलेज में होता था, लोग पढ़े हुए नहीं है तो एक दो जो पढ़े हुए होते थे, they used to read the newspaper and बता देते थे आज की ताजा खबरें, like this. Fine. So हम कहेंगे they have had a great impact and we can consider the contribution as one of the bases for the outbreak of French Revolution. क्योंकि these philosophers gave an idea, these philosophers actually told what is happening in the government which is not acceptable. Fine. तो इस तरह करके आप अपना इंट्रोडक्शन कर लेंगे. अब समझिए जो 3 मेन है which is as per your NCERT CBSE. So we have John Locke, we have John Jacques Rousseau. Now think, देखो बच्चों, it is spelled very differently like John Jacques Rousseau, but please remember this like this, Jean Jacques Rousseau. I do like this so that I do not make any spelling mistake. Spelling mistake का हमें चेक रखना है पेपर के लिए for the board exam. ठीक है, अभी से उसकी प्रिपरेशन करिए. एंड मॉन्टेस्क्यू, अब कैसे करना है? इनकी बुक्स को याद रखना है एंड व्हाट दे प्रपोज्ड. ठीक, अगर हम लॉक की बात करें तो बेटा एक चीज याद रखना, आप कहोगे कि भाई फिलोसोफर्स एक ऐसी सोसाइटी की बात करते थे. दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, आप ये कोट कर सकते हो. द सोसाइटी विच वॉज बेस्ड ऑन मेरिट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, है ना. द सोसाइटी विच वॉज बेस्ड ऑन फ्रीडम, द सोसाइटी विच वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. ठीक है, देन आप स्टार्ट कीजिए. ये जो जॉन लॉक थे, इन हिज 2 ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये याद होना चाहिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन मैचिंग में आता है. सो 2 ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट में इन्होंने कहा, ही रिफ्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क. इन्होंने कहा, समझो इस बात को, रिफ्यूटेड मीन्स मना कर देना. रिफ्यूटेड, किसको रिफ्यूट किया? द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन and absolute power of the monarch. Means why are we blindly following these things? Divine means ये जो चर्च जो अलग अलग एस्टेट इम्पोज कर रहे थे, fine, the clergy people. So why are we blindly following that?
इट्स ओके वी आर नॉट डूइंग समथिंग जो हमें लग रहा है कि गलत है, एंड दे आर फोर्सिंग अपॉन अस टू बी दैट थिंग टू बी फॉलोड। तो इसने कहा जॉन लॉक ने कि यस, you should directly refuse the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। monarch को एक absolute right क्यों मिला है बच्चों? absolute का मतलब full fledged, no limitation। ठीक, अब रॉजियो ने क्या कहा? रॉजियो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रॉजियो ने कहा कि भाई देखो, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये पीपल एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होती है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। सो किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो पावर कहां से आ रही है? फ्रॉम द पीपल। अब अगर आप सोचो बच्चों, तो रॉजियो ने एक बहुत बड़ी बात कही है। रॉजियो प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी इन विच पावर लाइज और शुड लाई विद द पीपल। तो रॉजियो ने कहा कि एक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए विच इज बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, where there is a social contract between people and the representatives. The representatives should take care of the people and the people should give a feedback to the representatives. वो free feel करें खुद को। ठीक, इनफैक्ट एक बात आप और याद रखिए, अभी जब किंग एस्टेट जनरल की असेंबली बुलाएंगे, वहां पे रेवोल्यूशन शुरू ही यहां से होता है कि थर्ड एस्टेट ये कहता है कि भाई 1 मेंबर का 1 वोट होना चाहिए। ये आइडिया भी उनको इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। सो दिस आइडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स प्रपोज बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर दिस, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ओके, देन मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक, किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो? लेजिस्लेटिव मीन्स लेजिस्लेचर जो आपका लॉ बना रहा है, द लेजिस्लेटिव विंग, द एग्जीक्यूटिव विंग जो एग्जीक्यूट कर रहा है लॉज को, एंड द जुडिशरी। ठीक है, विच इज टेकिंग केयर ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड अमंग्स द पीपल एंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई देयर शुड बी डिविजन ऑफ पावर, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। लेजिस्लेचर को पता हो उसे क्या करना है, एग्जीक्यूटिव विंग को पता हो उसे क्या करना है, जुडिशरी को पता हो। ओके, सो नाउ these are all the ideas proposed by the philosophers की अगर हम बात करें, political thinkers की बात करें। and then बच्चों you can say, ये तो हो गया, इसके बाद international influence, very important। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में कहा था the king supported the 13 colonies to get independence, remember that? ओके, सो यही ये जो कॉलोनीज है इनफैक्ट ये यूएसए पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस थिंकिंग का। सो आप ये कंक्लूड कर सकते हो दीज आइडियाज वर नॉट कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस और लोकेलिटी, बट दे ट्रांसेंडेड, यूज दीज वर्ड्स, और दे क्रॉस्ड द बॉर्डर्स एंड दे इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया में हम कितने इंस्पायर्ड हैं, हम ये बेटा फॉलो करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव रखते हैं। सो हम कहेंगे द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights is one of the inspiration which is taken by these political thinkers only. Fine. So then you can conclude in this manner. 5 marks का है तो उस तरह से आप ऐड कर लो पॉइंट्स को, एंड 3 marks का है तो सिर्फ कीप इट कंसाइज एंड मेंशन ऑल द 3. फाइन. लर्न द बुक्स लॉक, रोजो एंड मॉन्टेस्क्यू. Very important. Okay. God bless you children. Stay updated. Thank you all.